गुड आफ्टरनून एवरीवन। धैर्य, जान्य, शौर्य। मैम तो मैथ्स भी आप ही लेंगी? नहीं बेटा, मैथ्स आपका दिवाकर सर लेंगे। एक्सक्यूज यस तपस्या। मैम तो मैथ्स की क्लास भी मैम आप ही लेंगी? नहीं बेटा, मैथ्स का क्लास आपके दूसरे टीचर लेंगे। ओके मैम। So students, welcome you all in my class. Good afternoon everyone. I'll wait for 5 minutes. After 110 I'll start. Your one chapter is left, I think. Avni, please help me in a discussion. Yes, ma'am. Your one Yes, chapter ma'am. is left. Amer Fort tells its story. Yes, ma'am. And ma'am, growing food is also left. Chapter number 22. Growing food is also left. But Avni, Yes, ma'am. that 22 chapter is, I think, not coming in the exam, if I am not wrong. Avni? Avni? Ma'am, I'm not able to hear. Are you audible? अब सुनाई दे रहा है मुझे मुझे मेरी आवाज? मुझे आपकी आवाज आ रही है अवनी। यस अवनी। Yes, ma'am. Ma'am, growing food, Kritika ma'am has not taught us. She said that she would teach us, but she had lost her pen drive, so she didn't teach us chapter number 22. So I don't have any idea. She told me that only one chapter is left, that is Amer Fort, and the last chapter, growing food, she has not told me. So now today we'll start with the Amer Fort. After that I'll discuss with her and then I'll go with the growing food. Okay? Yes, ma'am. ठीक है. So Avni, you do one thing. You start reading parawise. How ma'am is Yes, taking class? ma'am. Avni, ma'am कैसे पढ़ाती हैं? मैम तो मैम मैम पहले रीड करवाते हैं, उसके बाद एक एक पैराग्राफ को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसके बारे में और कुछ भी उनको पता है तो वो सब भी हमको बताते हैं। ठीक है, तो ओके Avni, you can check the participants. Only 8 students are there. Every time this much students are coming in the class, or more than these numbers? No ma'am, 20 students are there, at least 20. तो आज तो Minimum सिर्फ 8 students are स्टूडेंट्स ही 20. हैं. मैम वेट करती हैं कि Yes कंटिन्यू ma'am. करती हैं? मैम 5 मिनट्स का टाइम देते हैं, उसके बाद जो ज्वाइन करते हैं, और अगर कोई लेट ज्वाइन करता है तो फिर उनको रिकॉर्डेड वीडियो देखने बोल देते हैं, या फिर अगर कुछ डाउट है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ठीक है, वैसे भी 110 हो गया है, 15 पे तुम्हारी क्लास रहती है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं फिर। यस ओके अवनी, मैम। ठीक है. सो
और who is having except Avni, who is having good reading skill? कौन अच्छा बोलता है? Just raise your hand. Who is having good reading skill? Nishita, okay, Suhani and Shaurya. You all are raising hand. Tapasya also. Okay, so I'll go with the alphabetical letter. So Avni starts A with first letter of English. So I'll go with the Avni. Uske baad Nishita and then Suhani and then Shaurya and then later Tapasya. Okay, we will move on like this. Okay, Avni, start. Hello, children. I am Amar Fort. Chapter number 21, Amar Fort, tell its story. Hello, children. I am Amar Fort. See how gracefully I stand on the Aravalli Hills, just 11 kilometers from Jaipur, Rajasthan. I have been a happy home to many Rajput Maharajs and their families to several years. So many people call me Amar Palace. I'm quite old. You see, almost 600 years old. I was built by Raja Man Singh. My body is made of red sandstone and marble. I Wait, have Avni. three main Wait, parts. Avni. Now, my question is, who will explain in this paragraph ki what are the major informations are given? Who will explain the major informations of this paragraph? Just raise hand again. These are the hands which are raised for telling to me that I want to read the lesson. Okay. Tapasya. Nishita, you don't raise the hand. You are reading, na? Nishita. Nishita, yes. Tell me the important points in this paragraph. Ma'am, it's for Araval Hills just. Ma'am, your voice is not clear. Leave it, I understand. Any problem? Okay. हाँ निशिता बोलिए. Network issue, ma'am. नेटवर्क इशू है. चलो ठीक है. Avni, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, I think that it is from 11 kilometers to Jaipur, Rajasthan, and it is been a home to many Rajput Maharajs, and it is 600 years old. Okay. So here in this And paragraph, ma'am, the main point that Raja Man Singh has made it. yes, that is the main point. Ki Raja Man Singh had made this palace. The palace name is Amer Fort before 600 years ago, and 600 साल पहले ये बनाया गया with sandstone and marble. ठीक है, तो ये राजा मान सिंह ने बनवाया था 600 years पहले with sandstone and marble in राजस्थान अरावली हिल्स में, जो कि 11 किलोमीटर दूर है जयपुर से. Got it? इतने में किसी को कुछ पूछना है? Is that clear? You can write in chat. Is that clear? In this paragraph, you can write in chat if you have any problem. Yes, Ashi, you want to say something? Yes, Suhani. Suhani, raise your hand. Okay, Suhani. हाँ, yes. मैम उसको almost 600,000 old है. 600 years old. Yes, ma'am. Any doubt? Ma'am, Noise is not coming. Suhani. Okay, so the students, I am repeating this paragraph once again कि ये जो पैराग्राफ है ये अरावली हिल्स में बना हुआ है
1100 किलोमीटर दूर है ये जयपुर से। राजपूत महाराजाज और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया है। इसको आमेर पैलेस बोला जाता है। 600 इयर्स ओल्ड है। राजा मान सिंह ने बनाया है विथ सैंडस्टोन एंड मार्बल। ओके अवनी कंटिन्यू। अवनी Ma'am, कंटिन्यू। please unmute. Yes, ma'am. I have three main parts: Diwani AM, meeting hall for general public; Diwani e Khas or Sheesh Mahal, Middle Palace or Jai Mandir; meeting hall for important people; Sukh Niwas, the place for of comforts. ओके My main तो entry is through. tapasya, the chapter name is Amer Fort tells its story. अभी तक आप चैप्टर ही खोज रहे हो बेटा। एंड स्टूडेंट्स, इस महल के 3 दरवाजे हैं, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है ये। फर्स्ट इज दीवाने आम, जहां पर सारी मीटिंग होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। सेकंड इज दीवाने खास और शीश महल, जहां पर ढेर सारे आईने बने हुए हैं, आईना लगा हुआ है, उसको जय मंदिर के नाम से भी बोला जाता है। मीटिंग हॉल फॉर इंपॉर्टेंट पीपल्स एंड सुख निवास, द प्लेस ऑफ कंफर्ट, जहां पर आराम किया जाता है। ये सबनी। Yes, ma'am. Can I continue? हाँ My main entry is through the Suraj Pole or the Sun Gate. It is also called because it faces the rising sun. On the opposite side in the Chand Pole or the Moon Gate. Suraj Pole opens into Jaleb Chowk, a place for soldiers to assemble. Here the Maharaj's personal bodyguards held parades and the Maharajas used to inspect them. I have seen them displaying their talent with grace and discipline. There is a place for the horses also. Guards used to live in the rooms on the first floor. okay, so here there are the 2 gates, 2 gates हैं, एक सन गेट है और एक बोलते हैं मून गेट। सन गेट को हिंदी में बोलते हैं सूरज पोल और मून गेट को बोलते हैं चंद पोल। तो जो एंट्री गेट है, जहां से एंट्री होती है, वहां से सूरज पोल, इसलिए उसको सूरज पोल बोला जाता है, बिकॉज इट फेसेस द राइजिंग सन। वहां से सनराइज होता है उस डायरेक्शन से, तो इसलिए उसको सूरज पोल का नाम दिया हुआ है। और ऑन द अपोजिट साइड इज द चंद पोल, और उसका अपोजिट साइड पीछे का जो हिस्सा है वो कहलाता है चंद पोल। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में देखो पिक्चर दिया हुआ है सूरज पोल का। सूरज पोल, जलेब चौक, सिंह पोल, दीवाने आम। सूरज पोल ओपन्स इनटू जलेब चौक। अब सूरज पोल से जब आप अंदर घुसेंगे, अंदर जाएंगे, तो वो आपको मिलेगा जलेब चौक में। जलेब चौक भी एक छोटा सा पैलेस है जहां पर सारे सोल्जर्स इकट्ठा हुआ करते थे। महाराजा's पर्सनल बॉडीगार्ड हेल्ड पैराडेज एंड द महाराजाज यूज्ड टू इंस्पेक्ट देम। यहाँ पर उनके जो पर्सनल, उनके खुद के जो बॉडीगार्ड्स होते थे, वो उनके साथ रहते थे और उनकी देख रेख करते थे। इंस्पेक्शन होता था, मतलब सारे जो बॉडीगार्ड्स थे वो महाराजा को एकदम कड़ी निगरानी में अपने आसपास में रखते थे। I have seen them displaying their talent with grace and discipline. There is a place for the horses also. अब जो बड़े बड़े महाराजा रहते हैं, उनके लिए तो घोड़े भी चाहिए, हाथी भी चाहिए। तुम लोगों ने आजकल की मूवीज देखा होगा, पाणा जी हो गया, और जो और भी मूवीज आई हुई हैं, उनमें आपने देखा होगा जो हिस्ट्री पर बेस्ड है, उसमें 2-3 एनिमल्स का बहुत जिक्र होता है। एक होता है एलिफेंट, दूसरा होता है हॉर्स और तीसरा होता है कैमल। तो अब इन जो एनिमल्स को अगर उनको युद्ध के लिए तैयार करना होता था, तो उनको वैसी डाइट विथ वैसी ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे नहीं कि किसी भी रोड से किसी भी एनिमल को उठा लिया या जंगल से पकड़ के ले आए और उसको युद्ध के लिए रेडी कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा उसको उस डाइट के लिए तैयार किया जाता है, वैसा खाना खिलाया जाता है और उसी तरीके से उसको वैसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो युद्ध में लड़ सके। गार्ड्स ऑल यूज्ड टू लिव इन द रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और जो उस महल के जो गार्ड्स रहते थे उनका भी एक रूम होता था, वो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। Just look at the left side of the Suraj Pole. देखिए लेफ्ट साइड of the Suraj Pole, here you find several shops from where you can buy handicrafts of Rajasthan. अब
जब आप अभी राजस्थान जाएंगे तो आपको वहां पर लेफ्ट साइड में ढेर सारी शॉप्स दिखेंगी। आप जब राजस्थान जाते हो, किसी महल को घूमने जाते हो, तो आप देखते होगे उसके आसपास में आपको बहुत ढेर सारी दुकानें मिलेंगी जो उसी स्टेट की कुछ अच्छी चीजें होंगी, जैसे कि घाघरा। राजस्थान में आपको पता है घाघरा चोली बहुत अच्छा मिलता है, जूतियां बहुत अच्छी मिलती हैं, चूड़ियां बहुत अच्छे मिलते हैं। तो पूरा जो ज्वेलरी आइटम्स है वो वहां का बहुत फेमस है। तो शॉप्स में वो बिकने के लिए रखा रहता है। ऑन द राइट साइड इज शीला देवी टेम्पल। तो लेफ्ट साइड में आपको सारी दुकानें मिलेंगी जिसमें आपको सारा हैंडीक्राफ्टिंग सामान मिलेगा, और राइट साइड में आपको शीला देवी का मंदिर मिलता है। द सिंह पोल और द लायन गेट थ्रू विच यू कैन एंटर टू सी द रेस्ट ऑफ मी। आमिर अपने आप को बता रहा है कि जब आप सिंह पोल से अंदर जाओगे तो पूरा नजारा आपको अंदर से मेरा देखने को मिलेगा। मैं वो महल हूं, जब आप अंदर घुसोगे सिंह पोल से तब आपको पूरा अंदर का नजारा मिलेगा। तो सूरज पोल इज द एंट्री पॉइंट, और सिंह पोल में पूरा आपको अंदर का नजारा मिलता है। यस, नाउ हु वांट टू रीड द नेक्स्ट आफ्टर अवनी? निशिता, ऑन योर वीडियो। Nishita is not here. Okay, Suhani, on your video. Acha, you are here. Yes. Now read. Yes. Now Yes, Nishita, ma'am. read. Yes, ma'am. Just look at the left side of Siraj Pole. Here you find several shops from where you can buy handicrafts of Rajasthan. To the right side is Sheela Devi Temple and the Singh Pole or the Lion Gate through which you can enter to see the rest of me. Yes. Look at this part of me. This is Divani It is the place where the Maharajas used to meet the common people. Made of reed, sandstone, and marble, this big hall is supported by pillars. Don't you feel that this structure reflects straight? This is the place where victories and festivals were celebrated, where the common people danced and shared their happiness with the royalty. Okay. Now you can Read. Okay, continue. Now you come to my most beautiful gate, Ganesh Pole. It is named after Lord Ganesha, who is known for removing all the obstacles in a person's life. Yes. Just look at the artwork and the fine jalas performed stone screen. There is a painting of Lord Ganesha right in front of the gate. The top of the gate has a beautiful canopy and two domes on either side of the canopy. Wait, Nishita. Let me explain this. Look at this part of me. This is Diwane Aam. So you have a picture in your left side. Diwane Aam का एक picture दिख रहा है आपको? It is the place. It is the place where the Maharajas used to meet the common people. महाराज जो उनके राज्य के लोग थे ना, तुमने जब कभी रामायण देखते हो, कभी महाभारत देखते हो, तो जो राजा लोग रहते हैं वो अपने प्रजा की बात सुनते हैं। तो प्रजा की बात सुनने वाला जो एरिया था वो ये था, दीवाने आम, जहां पर राजा अपने प्रजा की बात सुनते थे। ये दीवाने आम किन किन चीजों से बना है? रेड सैंडस्टोन, मार्बल, सपोर्टेड विद द पिलर्स, और लंबे लंबे पिलर्स दिए हुए हैं जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। इस पिलर्स के दम पे ये पूरा टिका हुआ है। डोंट यू फील दैट दिस स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ? इससे ये पता चल रहा है कि ये पूरा जो दीवाने आम है, मैंने अभी आपको बताया कि पिलर के दम पे खड़ा है। दिस इज द प्लेस वेयर विक्ट्रीज एंड फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड। जहां पर राजा कभी कोई युद्ध जीत के आते थे तो वहां सेलिब्रेशन होता था, फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होता था, कॉमन लोग आके नाचा करते थे, उधर गांव की प्रजा आके नाचती थी और खुशियां मनाती थी।
नाउ यू कम टू द मोस्ट ब्यूटिफुल गेट, गणेश पोल. आप राइट साइड में देखिए, आपको गणेश पोल दिख रहा है. इसको गणेश पोल क्यों दिया गया? Who is known for removing all the obstacles in a person's life. गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं. किसको किसको पता है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. तो विघ्नहर्ता बोलते हैं, इसलिए उनका नाम गणेश पोल. तो हम जब भी कहीं पर भी जाते हैं या कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं. तो इन्होंने भी अपने गेट का नाम दे दिया गणेश पोल. जस्ट लुक एट द आर्ट वर्क एंड द फाइन जालीज. जो स्टोन, जो वो जाली जो बनी हुई है, आप जब इस कभी अगर गए होगे इस तरह के फोर्ट में या महल में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जालियों की नक्काशी होती है. जालियां जो सीमेंट की बनी होती हैं, मार्बल्स की बनी होती हैं, ऐसे प्लास्टिक की जालियां नहीं होती, कपड़ों की जालियां नहीं होती हैं, उनकी बनी हुई जालियां होती है. उसपे पेंटिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा. तो आपको देखिए फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है गणेश जी की. गणेश जी हाथ में बढ़िया लड्डू मोदक लिए बैठे हैं, फ्लावर उनके हाथ में है और नीचे चूहा भी बैठा हुआ है. The top of the gate has a beautiful canopy and the two domes on either side of the canopy. अगर आप सबसे ऊपर देखोगे, डोम्स का मतलब होता है, आपने मंदिरों में ऐसे गोल छतरी देखी होगी, ऐसे गोल सी छतरी देखी होगी. अब हम भी जब मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा मंदिरों में ऐसे छतरी होती है, तो उस छतरी को इंग्लिश में बोलते हैं डोम्स. ठीक है. तो जो सेकेंड पिक्चर है गणेश पोल की, उसके बीच में एक छज्जा बना हुआ है. कैनोपी मतलब छज्जा, छतरी जैसा, और डोम्स मतलब दो डोम्स बने हुए हैं. तो कैनोपी विथ टू डोम्स बने हुए हैं. यस निशिता, कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ. Come, let me now show you the Divan's Ikas. It is also known as Jai Mandir because it was constructed during the reign of Mirza Raja Jai Singh. Yes. Diwani-e-Khas is decorated with fine glasswork. Therefore, it is also called Shesh Marble or Glass Palace. Don't miss the magic flower fresco in my Shesh Mahal, carved in marble at the base of one of the pillars around the mirror palace. It has two hovering butterflies. The flower has 7 unique designs of fish tail, a lotus, a hooded cobra, and an elephant trunk, a lion's tail, a cob of corn, and a scorpion. Each is viewed by a particular way of partial hiding of the panel with hands. Sukh Nivas, or the Palace of Pleasure, is just opposite to Divasikas. The entry to the Sukh Nivas is through a sandalwood door. There is an open channel of water in the palace. Artificial created winds blow over the water casted within the palace and help to keep the environment cool. In front of Sukh Nivas is a beautiful garden. It is laid out with narrow channels lined with marble around a star-shaped pool with a fountain at the center. Water for the garden is let from the Sukh Nivas cascade of water channel and also from the cascade channels called the Chini Khana leeches that originate from the terrace of Jai Mandir. Great निशिता. तो अभी हमने पढ़ा था दीवाने आम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं दीवाने खास के बारे में. तो दीवाने खास, इट ऑल्सो नोन एज जय मंदिर. जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बना था उसके समय पे मिर्जा राजा जय सिंह वन.
मिर्जा राजा जयसिंह वन जब राज करते थे तब ये बना हुआ था, इसलिए उसका नाम जय मंदिर पड़ा। दीवाने खास इज डेकोरेटेड विथ फाइन ग्लास वर्क, ये पूरा कांच का बना हुआ है, इसलिए इसको शीश महल भी बोला जाता है और ग्लास पैलेस भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि कांच का बना है तो तुम जब मार्केट जाते होगे तो तुम देखते होगे कि कांच के ऊपर भी बहुत सा वर्क होता है। जब हम घर में अपने कोई मिरर लेकर आते हैं तो साइड में उसके बाउंड्रीज में कुछ डिजाइन बना होता है ना, या फिर कुछ लोग अपने घर पे कांच का वर्क करवाते हैं तो उसमें भी डिजाइन बना होता है। तो वैसे ही डिजाइन्स उस महल में बने हुए हैं। डोंट मिस द मैजिक फ्लावर फ्रेस्को इन माई शीश महल कार्व्ड इन मार्बल एट द बेस ऑफ द वन पिलर्स। एक पिलर है जिसमें एक अजीब तरह का फ्लावर बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर है, उसको बोलते हैं मैजिक फ्लावर। उस मैजिक फ्लावर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो फ्लावर के साथ में उसमें डिफरेंट एनिमल्स भी हैं। उस फ्लावर का, ये जो मैजिक फ्लावर आपकी बुक में पिक्चर दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको मैजिक फ्लावर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट हैज 2 हॉवरिंग बटरफ्लाईज, 2 उड़ती हुई तितलियां हैं। The flower has 7 unique designs of fish tail. जो फ्लावर्स बने हुए हैं उसमें 7 डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ फिश। फिश की जो टेल होती है वो अलग अलग डिजाइन की होती है। जब आप टीवी में कभी देखते होगे कुछ एनिमल प्लैनेट के बारे में, तो आप जब फिश को देखोगे तो फिश का जो टेल होता है वो अलग अलग शेप का होता है। हर डिपेंड करता है कि वो कहाँ होती है, पॉन्ड में होती है, रिवर में होती है, ओशन में होती है, उसके हिसाब से उसकी टेल होती है। तो ये बोल रहा है कि 7 टाइप्स ऑफ फिश टेल, अ हुडेड कोबरा, कोबरा तुम जानते हो, व्हाट इज कोबरा, एंड एन एलिफेंट ट्रंक, हाथी का सूंड, लायंस टेल, अ कॉब ऑफ कॉर्न, भुट्टा, भुट्टा जब आप देखते हो भुट्टा कैसा होता है जो आप खाते हो, एंड अ स्कॉर्पियन दैट इज बिच्छू। Each is viewed by a particular way of partial hiding of the panel with the hands. और ये सब कुछ आप देखोगे तो जब अपनी आंखों को हाइड करोगे आधा, तब कहीं जाके वो आपको दिखेगा। ठीक है, तब ये आपको ये पूरा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक फ्लावर। एक मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं आप लोगों की एज में थी और मैं जयपुर जा चुकी हूँ, तो मैंने एक बहुत बड़ा, मतलब कोई राजा थे, मुझे राजा का नाम नहीं याद है, मैंने एक राजा की पिक्चर देखी हुई थी। उस पिक्चर को आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे तो वो पिक्चर में राजा आपको ही देख रहे होंगे। अगर आप वो जिस तरीके से फिक्स्ड है और वो जिस तरीके से बनी हुई थी उसको देखने से अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपको लगेगा कि राजा राइट साइड से देख रहा है, और अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको लगेगा राजा लेफ्ट साइड से देख रहा है। आप स्ट्रेट देखना चाहोगे आपको स्ट्रेट दिखेगा। तो वो जिस तरीके से बनी हुई थी दैट इज द ओल्डन टाइम्स आर्किटेक्चरल पेंटिंग। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत अलग है और जो हम इजिली बनवा नहीं सकते, वो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस में देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सुख निवास। तो हमने अभी पढ़ा है दीवाने आम, दीवाने खास एंड सुख निवास। सुख निवास और द पैलेस ऑफ प्लेजर इज जस्ट अपोजिट टू दीवाने खास, जहां पर लोग आराम करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है सुख निवास, तो सुख निवास में लोग आराम करते हैं, वो दीवाने खास के जस्ट सामने है। द एंट्री ऑफ द सुख निवास इज थ्रू अ सैंडलवुड डोर। आप लोगों ने चंदन का नाम सुना? चंदन जो पूजा में यूज होता है, चंदन सुना है? चंदन, तो चंदन जो यूज होता है उसके दरवाजे बने हुए हैं। There is an open channel of water in the palace. Artificially created window blow over the water cascade within the palace and help to keep the environment cool. और कुछ विंडोज ऐसी बनी हुई हैं जो जिस डायरेक्शन में हवा चलती है विंडोज तब खुलते हैं, अदरवाइज विंडो खुद ही बंद हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो घर है, जो वो महल बना हुआ है सुख निवास, वो कंप्लीटली बना हुआ है सुख देने के लिए। इन फ्रंट ऑफ सुख निवास इज अ ब्यूटिफुल गार्डन। ये आपके सामने देखिए, सुख निवास के सामने गार्डन दिया हुआ है पिक्चर में, एंड इट इज लेड आउट विथ नैरो चैनल्स लाइंड विथ मार्बल्स अराउंड अ स्टार शेप्ड पूल। बीच में एक स्टार शेप पूल दिया हुआ है, फाउंटेन निकलता है उसमें से। वाटर ऑफ द गार्डन इज लेट फ्रॉम द सुख निवास कैस्केड्स ऑफ वाटर चैनल एंड ऑल्सो फ्रॉम द, तो चीनी खाना नीचे
उसके नीचे मतलब आप देखोगे तो सब जगह बैठने की जगह दी हुई है. दिस इज द टेरेस फ्रॉम जय मंदिर. यस जन्य, आपको कुछ बोलना है जन्य? मैम यस बेटा. 1 मिनट में याद है. मैम वो खुद बंद कैसे हो जाता है? विंडो का डायरेक्शन बेटा वैसे ही चलता है, इसलिए अब जैसे आप अगर अपने घर में खिड़कियां खोल के रखोगे और जब हवा चलती है तो वो खुद बंद हो जाता है. और हवा अगर हाँ. अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जब ना विंडो बंद होने का रहेगा, तो विंडो मतलब चारों तरफ जो खिड़कियां हैं वो इस तरफ से बनी हुई हैं कि जिस जगह डायरेक्शन में हवा चलेगी वो विंडो उस तरफ से हवा को पास करेगा और दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में विंडो को बंद कर देगा. So students, now you Okay, have ma'am. only 5 minutes left. Rest of the topic we will do tomorrow. Any doubt? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. Please write in chat. किसी को कोई डाउट नहीं है? Please write in chat. बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट No, करेंगे. ma'am. मैम अब एक भी क्लास नहीं है. नेक्स्ट पीरियड मतलब मेरा जब नेक्स्ट पीरियड फ्राइडे को है. ओके मैम. ओके ओके मैम. ओके. हैव अ ग्रेट डे. बाय. टेक केयर. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय. You also take it, ma'am. Ma'am. Ma'am.